Okay, students, now our next topic is how to purify the seawater. Okay, how to purify the water reserve in a particular tank. For this, we have the figure 2.13 in our textbook, a water purification system in waterworks. First of all, what we do, we take the water from the reservoir and we allow the water to pass through the sedimentation tank. In this tank, what happens, the massive elements, the elements which have the high mass, will settle down in the tank. In this tank we have some particular kind of chemicals such as substance such as potassium. Now next, the partially purified water is next loaded to sediment the suspended impurities. Loaded to the remaining water which is sedimented in the sedimentation tank is made to pass through the loading tank, okay, to sediment the suspended impurities. The impurities which have been suspended in the sedimentation tank, to separate that impurities from the water is passed to the loading tank. Okay, from that loading tank, the water is again passed proceeded to the filtration tank. Okay, in which the fine sand, the gravules and the coarse gravules are filtrated. In this filtration tank we have various kind of filters, various kind of physical and chemical filters. Using these physical and chemical filters, the the sand materials and the gravular materials and the coarse gravular materials present in the water will be sedimented down, will be suspended and settled down in the filtration tank. And now from this filtration tank, the partially purified water is then made to pass through chlorination to kill bacteria. Okay, now till now the solid materials and the suspended materials have been removed from the water, but in water, along with the water molecules, there will be many such bacteria which will be reacting with the molecules of the water. That bacteria, that unwanted impurities should be cleared, and this is done in the chlorination tank. Okay, chlorination tank, what it does, the partially 75% partially purified water, in this chlorination tank, the water is freed from bacteria. The water is purified and all the bacteria from the water are removed, and from this chlorination tank the water is directly supplied to the homes. तो बच्चों, ये वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है. जब रिजर्वायर यानी जहाँ से पानी जमा होता है, जैसे कि नदी से या फिर दरिया से या समंदर से पानी लेकर सबसे पहले सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को पास किया जाता है. इस टैंक में क्या होता है, जो मैसिव एलिमेंट्स है, जो वजनदार चीज है, पानी में जो वजनदार गंदगियां हैं, वो सारी गंदगियां सेडिमेंटेशन टैंक के नीचे जमा हो जाती हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें से, इस सेडिमेंटेशन टैंक में से वाटर जो है, पानी जो है, पास किया जाता है लोडिंग टैंक को. राइट, लोडिंग टैंक में क्या होता है, वो गंदगी जो सेडिमेंटेशन टैंक में बच गई थी, उस गंदगी को पानी से अलग करने के लिए ये लोडिंग टैंक बनाया गया है. इस लोडिंग टैंक में जो है सस्पेंडेड इंप्योरिटीज पानी से बिल्कुल फिल्टर कर दी जाती हैं. फिर यहाँ से पानी को सेंड किया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में. यहाँ पे इस फिल्ट्रेशन टैंक में जो है फिजिकल फिल्टर्स भी होते हैं, केमिकल फिल्टर्स भी होते हैं. इसमें क्या होता है, मट्टी के कंकर वगैरह और सीपियां वगैरह, इस तरह की चीजें फिल्टर हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है. ये सॉलिड है लेकिन ये हल्के वजन की है, लाइट वेट के हैं. ये पार्टिकल्स सेडिमेंटेशन टैंक में, लोडिंग टैंक में फिल्टर नहीं होते, ये फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्टर होते हैं. इसके बाद अब प्योर वाटर, प्योर यानी कंप्लीटली प्योर नहीं, वो वाटर जिसमें दिखने वाला, नजर आने वाला कचरा मौजूद ना हो, वो वाटर जो है क्लोरिनेशन टैंक में सेंड किया जाता है. इस क्लोरिनेशन टैंक में पानी के अंदर के सारे बैक्टीरिया, सारे अनवांटेड मटेरियल्स, सारे अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारकर, किल करके इस वाटर को
प्योरली यूजेबल किया जाता है, यानी इस्तेमाल करने के काबिल किया जाता है। यहाँ से क्लोरिनेशन टैंक से डायरेक्टली ये वाटर जो है हाउसेस को सप्लाई होता है। तो इस तरह का प्रोसेस है वाटर को प्यूरिफाई करने का। नाउ लेट अस सी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हमें फर्क करने के लिए यानी कौन सा सॉल्यूशन मिक्सचर है और कौन सा सॉल्यूशन प्योर है, इसे डिफरेंस करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन को हमें दिए गए हुए सैंपल को फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन से पास करना पड़ता है। अब वो कैसे पास करेंगे ये इसमें इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट अबाउट few physical properties of matter, the properties that can be observed and specified like color, hardness, rigidity, purity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. कोई भी सोल्यूशन आपको दें, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैसियस हो, कोई भी सोल्यूशन आपको दें तो सोल्यूशन का उसका खुद का कलर होता है, उसका खुद का हार्डनेस यानी सख्त है या नरम हो, या फिर रिजिड है, रिजिड बॉडी यानी रबर की तरह बॉडी है, या फ्लूइड है यानी बहने वाली चीज है, या फिर डेंस है यानी वजनदार चीज है, या फिर और उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी कितना टेम्परेचर सप्लाई करे तो वो उबलने लगता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना टेम्परेचर सप्लाई करे तो वो ठंडा होने लगता है, और कितना टेम्परेचर सप्लाई करे तो वो उबलने लगता है। दिस आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये क्या है? किसी भी सॉल्यूशन के, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसका हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया है। The interconversion of states is a physical change between these changes occur without a change in composition of the substance. इंटरकन्वर्शन ऑफ स्टेट्स मतलब क्या? अब वाटर है, अब उसे फ्रिज में रखो, डायरेक्टली वो बगैर कोई प्रोसेस के डायरेक्टली लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। वाटर पहले लिक्विड था, उसके बाद सॉलिड यानी आइस बन गया, यानी लिक्विड जाके सॉलिड बन गया। ठीक है, अब उस आइस को आप हीट करेंगे तो वो सॉलिड वंस अगेन लिक्विड बनेगा। उसके बाद वो लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो गैसियस बन जाएगा। तो ये फिजिकल चेंजेस है। ये चेंजेस ऑफ स्टेट क्या, ये स्टेट चेंज को क्या कहेंगे? हम फिजिकल चेंज कहेंगे। उसके बॉडी चेंज और बॉडी शेप चेंज हो रहा है। बर्फ जाके लिक्विड बन गया, सॉलिड जाके लिक्विड बन गया, वो लिक्विड जाके गैसियस बन गया। तो इस तरह से although ice, water and water vapor are all look different and display different physical properties, they are chemically the same. Both water and cooking oil are liquid but their chemical characteristics are different. अब देखो, पानी भी एक लिक्विड है, और घर में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं सर को लगाने के लिए, पकाने के लिए, और केरोसिन ऑयल टू बर्न द वुड्स, ये सारी चीजें तेल, ये भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, लेकिन ये दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कंप्लीटली डिफरेंट है। इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, इनकी विस्कोसिटी डिफरेंट है, इनकी डेंसिटी डिफरेंट है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। दे डिफर इन ऑर्डर एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, और इनकी खुशबू भी अलग है। पानी में कोई इसी तरह की खुशबू नहीं होती, लेकिन आप जो घर में तेल इस्तेमाल करते हैं पकाने के लिए, उसमें भी खुशबू है, और या फिर सर को हेयर ऑयल है उसमें भी खुशबू है, केरोसिन ऑयल है उसमें भी खुशबू है। तो ये डिफर करते हैं, वो जबकि वाटर भी लिक्विड है, ऑयल भी लिक्विड है, लेकिन these are different in their chemical properties. Water, we know all that oil burns in air whereas water extinguishes fire. अब इसमें देखो केमिकल चेंजेस क्या है। अब हवा में किसी लकड़ी पे गैस का तेल डालो, लकड़ी जल जाएगी। वही लकड़ी में पानी डालो, लकड़ी की आग बुझ जाएगी। तेल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। तेल आग लगाएगा, पानी आग बुझाएगा। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस है, जबकि दोनों लिक्विड है। ड्यूरिंग दिस बर्निंग, ए केमिकल चेंज, during this process of one substance react with another to undergo change in chemical position. तो ये प्रोसेस के जरिए, ये प्रोसेस के वक्त ऑयल जो है एक अलग केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है, और पानी एक अलग केमिकल रिएक्शन फॉलो करता है। राइट, ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ कैंडल बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। कैन यू डिस्टिंग्विश दिस? नाउ व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर एलिमेंट्स? अब प्योर सब्सटेंस के टाइप्स कितने हैं? बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी सब्सटेंस के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है
उसके हिसाब से हम सब्सटेंस को या तो एलिमेंट कह सकते हैं, एन सिंगल मॉलिक्यूल, या फिर कंपाउंड, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मॉलिक्यूल।